Hello to class 12 and class we are moving forward we were reading about total average and marginal product. So we are doing in the last video we started with the schedule, that is total average and marginal product schedule. So I'm just going to explain it to you once again, and then we are going to move forward, then we'll read relationships, right? So here we are seeing, as we know that we are reading laws of return, and under laws of return you have two types of production functions. One is short run and one is long run. So right now we are reading short run production function. Remember that we are right now reading short run production function. If I say what is a short run production function, you're going to say that short run production function is that time or that production function under which there is only one factor of production is fixed, and the others are variable, or you can say the other factor of productions are fixed and the one is variable, right? And the variable factor production, what is special about variable factor production? Variable factor production are those production factors of production or inputs which can be varied, which can be changed, right? In case you want to change your output, you're going to change your input, right? In case you want to increase your input, you're going to increase your in case you want to increase your output, you're going to increase your input, right? So this happens in short run. In short run, variable factor can be increased and decreased, but fixed factor cannot because the time is too short. So here is the number of workers here, right? You have altogether 11 number of workers. So 11 labors you have, and each labor is variable. That means this is your variable factor production. That means for increasing your product, you are going to increase your what? You are going to increase your labor also, right? So this is the total product. When so total product is, this is your total product. Right? So what is happening here is this: when the labor was zero, that means your variable factor production was zero, then you are having no production. जो आपका कोई लेबर काम ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका कोई भी टोटल आउटपुट नहीं होगा, मतलब आपका कोई भी आउटपुट नहीं बना. जब आपका लेबर जीरो है तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं बना तो एवरेज प्रोडक्ट भी नहीं होगा, एवरेज प्रोडक्ट नहीं है तो एनपी भी नहीं होगा, राइट? सेकंड थिंग, अब आपने क्या किया, एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, वन. आपने क्या किया, एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया. पहला वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने में आपका टोटल टीपी कितना हुआ? टीपी इज आउटपुट, टोटल आउटपुट कितना हुआ? 100 यूनिट्स. ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पेन है, तो एक लेबर इस्तेमाल करने पे आपको क्या किया, कितने पेन बने? 100 पेन्स बने. ठीक है, अब एपी क्या होगा? एपी का फॉर्मूला है टीपी अपॉन एल. तो टीपी क्या है? 100 एंड एल क्या है? 1. तो 100 डिवाइड बाय 1 गिव्स यू 100. सो योर एवरेज प्रोडक्ट इज 100. ये एमपी क्या है? हमारे पास इससे पहले कोई माइनस करने के लिए नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 का 100 आपका एमपी आ गया. मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था. व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट देन वन एडिशनल वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज. जब हम एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं तो टीपी में क्या चेंज आ रहा है? टीपी में कितना चेंज आ रहा है? वो क्या आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे एक बढ़ाने के बाद टीपी में कितना चेंज आया? 100 का चेंज आया. 100 का चेंज आया तो क्या है आपका एनपी क्या है? 100 होगा. नाउ सेकंड लेबर बढ़ाने पे, अब आपने कितना लेबर बढ़ाया? सेकंड लेबर बढ़ाने पे, सेकंड लेबर आपने जैसे बढ़ाया तो व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट? आपका टोटल प्रोडक्ट 100 से कितना हो गया? 220 पहुंच गया. इंक्रीज ऑफ वन प्रोडक्ट, वन फैक्टर इनपुट. एक लेबर और बढ़ाया तो 100 से 220 पहुंच गया. ठीक है, तो 220 इनकी बीच का जो अंतर है वो तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट. 220 माइनस 100 गिव्स यू 120. ठीक है, और 220 अपॉन एल दैट इज 2. टीपी अपॉन एल, यहाँ पे टीपी क्या है सेकंड में? 220, और यहाँ पे लेबर कितना है? 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आपका? एपी आ गया. तो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग. सेम इट इज गोइंग ऑन लाइक दिस. सेवेंथ वाले पे कितना हो गया? 840 आपका टोटल प्रोडक्ट है, और 840 को हमने 7 से डिवाइड किया तो आपका एवरेज प्रोडक्ट 120 आ गया. ठीक है, और 840 माइनस 750 तो 90 आ गया. इस तरह चलता रहा. तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल प्रोडक्ट में नजर डालेंगे तो टोटल प्रोडक्ट पहले आपका बढ़ा और 880 में ये कांस्टेंट हो गया. 880 एंड आफ्टर दैट ये डिक्रीज होना शुरू हो गया. तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? इसका मतलब ये है कि टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज करता है, एक जगह जाके कांस्टेंट हो जाता है और बाद में क्या जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे कांस्टेंट है 880. एपी को देखिए, एपी में नजर डालें तो एपी क्या हो रहा है? शुरुआत में बढ़ रहा है 100 से 110,
फिर 120, 130, फिर 130 और फिर गिरना शुरू हो गया। इसका मतलब एवरेज प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर स्टेज में जाने के बाद क्या हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। हमने इन्हीं स्टेज के बारे में पढ़ना है कि कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है, एपी, एमपी, टीपी, ये सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट इज योर व्हाट, एमपी। एमपी के बारे में बात करें तो एमपी के आपका, मैंने आपको बताया एमपी के डिफरेंस बिटवीन टीपी, नया टीपी माइनस पुराना टीपी, नया टीपी माइनस पुराना टीपी, नया टीपी माइनस पुराना टीपी, राइट, दैट इज टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो हम एवरी एडिशनल यूनिट लेबर की इंक्रीज करने पे हमारे टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है वो हमारे क्या होता है, एमपी होता है। तो अगर एमपी में ध्यान देंगे आप, देखोगे आप एमपी आपका 100 से 120, 140, 160, तो 160 तक क्या है, इसकी स्टेज क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। ये आपकी स्टेज कौन सी, इंक्रीजिंग रिटर्न वाली, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी एमपी बढ़ रहा है, इसलिए हमने क्या नाम दिया इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का नाम दिया, इंक्रीजिंग एमपी है। उसके बाद देखोगे घटना शुरू हो गया, कहाँ से घटना शुरू हो गया, ये 130 से घटना शुरू हो गया, 130 से घट के 100 हो गया, 100 से घट के 90 हो गया, 90 से घट के 40 हो गया। तो यहाँ तक क्या हो गया, डिक्रीजिंग एमपी है, यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग एमपी है। और उसके बाद तो क्या चला गया, 0 के बाद नेगेटिव ही चला गया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द टेबल इज ऑल अबाउट। ये टेबल आपको ये बता रहा है कि टीपी कैसे बिहेव करेगा, एमपी कैसे बिहेव करेगा, बाकी सारी चीजें किस तरह बिहेव कर रही है, आपके एमपी कैसे, टीपी कैसे और एपी कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपका वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है तो टीपी पहले इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट होकर डिक्रीज करना शुरू कर देता है। एपी के केस में एपी इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एमपी के केस में एमपी तो शुरू से ही क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि 0 पॉजिटिव के बाद नेगेटिव भी हो जाता है। तो ये क्या है आपका, दिस इज अ टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट शेड्यूल, राइट, दिस इज अ शेड्यूल। सो नाउ ये तो हमने पढ़ा, ये चीज आपकी समझ में भी आई होगी। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। हम साइड में कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी पढ़ेंगे। सो वी नॉट रब ऑल, so relation between AP and MP. So we are reading about relationship between AP and MP. मैंने इसको मिटाया इसलिए नहीं है, why I'm not rubbing the schedule, I'm not rubbing the schedule so that you can compare. जो मैं बोलूंगी या जो बोर्ड में लिखेंगे हम उसको आप क्या कर सकते हो, स्केड्यूल से कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। हम स्केड्यूल देख देख के रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो पहला, देन MP is, जब MP क्या है, when MP is greater than AP, this means that AP is rising. Now पहला, when MP is greater than AP, this means, इसका मतलब क्या, आप देखो जब MP क्या है, greater than AP है, यहाँ पे बड़ा है MP, यहाँ पे भी बड़ा है MP, इधर भी बड़ा है MP, इधर भी बड़ा है MP, इधर भी बड़ा है MP, ठीक है। तो जब तक MP क्या है, AP से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, that AP is rising. Means that AP is rising. This is first relationship. You can see they are saying till the time MP is increasing, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, यहाँ तक बढ़ रहा है, तब तक आप देखोगे यहाँ तक आपका AP भी बढ़ रहा है। देखिए बड़ा 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 बड़ा, जैसे घटना शुरू होगा आपका AP भी घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। Second relationship, when MP is equals to AP, this means AP is constant. Second relationship, when MP is equals to AP, this means AP is constant, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब AP और MP बराबर है, अब आप देखो AP और MP कहाँ बराबर है, जब AP और MP बराबर है, AP MP बराबर हो गए यहाँ पे, जब AP और MP बराबर है, इसका मतलब क्या है, AP क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब आपका यहाँ पे भी 130 है, यहाँ पे भी 130 था, कांस्टेंट हो गया था AP आपका। वेरी सिंपल रिलेशनशिप। थर्ड रिलेशनशिप क्या है, when MP is smaller than AP, this means AP is falling. When MP is smaller than AP, this means AP is falling, right? So this is the relationship. The first relationship किसके बारे में बीच में पढ़ रहे हैं, AP और MP के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, और ये 2021 के बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। So relationship क्या है,
when MP is greater than AP, that means AP is rising. When MP is equals to AP is constant, यहाँ पे AP constant है. When MP is greater than AP, यहाँ पे MP आपका greater than AP हो गया, smaller than AP हो गया, this means AP is falling. So this is the relationship between AP and MP. I hope this relationship is clear to you. Now we'll move forward to next relationship. The next relationship we are going to read is TP and MP. Now the relationship we are doing is TP और MP के बीच में हम relationship पढ़ेंगे. ठीक है, TP और MP के बीच में relationship पढ़ेंगे. तो सब कुछ आपके सामने. When TP increases at increasing rate, MP is increasing. पहला relation, when TP is increasing, MP is also increasing. जब तक टीपी बढ़ रहा है तब तक क्या है, एमपी भी बढ़ रहा है, आप देख सकते हो. ठीक है, देखो आपका टीपी बढ़ रहा है यहाँ तक बढ़ता गया तब तक आपका एमपी भी बढ़ता गया 160 तक. सेकंड रिलेशनशिप क्या है? सेकंड रिलेशनशिप व्हेन टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी डिक्लाइंस. सेकंड, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, जब टीपी क्या कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड क्या है, कम हो गई है. ठीक है, देन एमपी, तो एमपी में क्या होता है, एमपी क्या हो जाता है, डिक्लाइन. एमपी क्या हो जाता है, डिक्लाइन. राइट, एमपी क्या हो गया, डिक्लाइन. थर्ड रिलेशनशिप यू कैन सी, व्हेन टीपी रीचेस मैक्सिमम, एमपी इज 0. व्हेन टीपी इज maximum, MP is 0. जब TP मैक्सिमम पहुंचता है, मैक्सिमम कहाँ पे, TP 880 पे, तो MP इस केस में क्या होगा, 0 होगा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब TP आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, MP 0 होगा. नेक्स्ट रिलेशनशिप. ठीक है, जब अब TP जब डिक्लाइन होता है, फोर्थ रिलेशन, व्हेन टीपी डिक्लाइन, जब टीपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, देन एमपी इज नेगेटिव, एमपी इज नेगेटिव. राइट, सो यू कैन सी द रिलेशनशिप. दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट. टिल द टाइम टीपी इज इंक्रीजिंग, एमपी इज आल्सो इंक्रीजिंग. व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, देन एमपी डिक्लाइंस. व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, एमपी इज 0, एंड व्हेन टीपी डिक्लाइंस, एमपी इज negative. Got it? So this is the relationship between TP and MP. So this is the relationship between AP, MP and TP and MP. Right? Now we are going to move forward. Now children, alright, now returns to factor. We'll start with returns to factor. Now what is returns to factor? Children, returns to factor, as I told you, returns to factor is first of all the concept of short run. It is the concept of short run, right? The production function in short run is known as returns to factor. Keep this in your mind, that concept of production function in short run is known as returns to factor. मतलब अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और वो शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में क्या होता है और कैसे होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिटर्न्स टू फैक्टर कहेंगे. तो कभी भी रिटर्न्स टू फैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाइए कि शॉर्ट रन के बारे में बात हो रही है, या शॉर्ट रन बोला तो इसका मतलब रिटर्न्स टू फैक्टर के बारे में बात हो रही है. सो रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब क्या है? रिटर्न्स टू फैक्टर मीन्स चेंज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ अ गुड व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड.
when quantity of one input is increased, the change in output, the change in what? The change in output, while other factors are fixed, is called returns to factor. Now what they are trying to say, वो ये कह रहे हैं कि जब आपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया, वेरिएबल फैक्टर को क्या किया आपने, इंक्रीज किया, ठीक है, और इससे क्या हुआ, आउटपुट बढ़ा, इससे क्या हुआ, आउटपुट बढ़ा। जब आउटपुट बढ़ा तो क्या हुआ, जब आउटपुट बढ़ा, और दूसरे फैक्टर्स क्या थे, फिक्स फैक्टर्स क्या थे, फिक्स फैक्टर्स क्या थे, फिक्स थे। तो इस केस में जो आउटपुट बढ़ा, ये क्या आपका रिटर्न्स टू फैक्टर, ये क्या आपका रिटर्न्स टू फैक्टर। दैट मीन्स जब आपका एक फैक्टर वेरिएबल रहेगा, ठीक है, वन फैक्टर इज वेरिएबल फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स आर फिक्स फैक्टर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिटर्न्स टू फैक्टर कहेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रिटर्न्स टू फैक्टर क्या है, रिटर्न्स टू फैक्टर आपका शॉर्ट रन के बारे में बोलता है, ठीक है। अब रिटर्न्स टू फैक्टर के बारे में और ये बताया गया है कि अलग अलग स्टेजेस क्या है। तो वो कह रहे हैं व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस, व्हेन वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड, दिस इज नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर, राइट। अब इसमें के तीन स्टेजेस आती हैं, जैसे कि आपको डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, देयर आर 3 स्टेजेस इन दिस। द 3 स्टेजेस आर इंक्रीजिंग स्टेजेस, डिक्रीजिंग स्टेजेस एंड नेगेटिव स्टेजेस, ठीक है। या तो आप कह सकते हो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सो दैट बेसिकली हम कितने तरह के रिटर्न्स पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे 3 तरह के रिटर्न्स को अब हम पढ़ेंगे, राइट। सो that we'll be doing in the next video, and what we have done till now is we are doing lesson number 7, और lesson number 7 में हमारे returns to factors पढ़ रहे हैं हम, और या लॉ ऑफ रिटर्न्स वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा शॉर्ट रन के बारे में एंड लॉन्ग रन के बारे में। शॉर्ट रन वो टाइम होता है या वो समय होता है जिसमें आप प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसमें आपके 2 तरह के इनपुट्स होते हैं, एक वेरिएबल जिसको चेंज किया जा सकता है और एक फिक्स जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो शॉर्ट रन में आपके 2 तरह के फैक्टर्स होंगे या 2 तरह के इनपुट होंगे, एक चेंज कर जा सकते हैं जिसे वेरिएबल फैक्टर, और एक चेंज नहीं कर सकते जिसे फिक्स फैक्टर। अब चेंज इसको शॉर्ट रन में इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते इतने शॉर्ट समय में, मतलब मशीनरी फिक्स फैक्टर है, बिल्डिंग फिक्स फैक्टर है, प्लांट फिक्स फैक्टर है, तो आपके पास समय इतना कम होता है शॉर्ट रन में कि आप इनका अरेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर को आप अरेंज कर सकते हैं जैसे कि लेबर एंड रॉ मटेरियल। लॉन्ग रन के बारे में कहानी क्या है कि लॉन्ग रन वो समय पीरियड होता है जिसमें आपके पास सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप सारे के सारे फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हो जब चाहे। मतलब अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आप इंक्रीज करेंगे, अगर आपको आउटपुट घटाना है तो आप डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नाम की नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि लॉन्ग रन है, और लॉन्ग रन में आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी का भी इंतजाम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा, इसके अलावा हमने पढ़ा एपी, टीपी और एमपी और रिलेशनशिप्स पढ़े, ठीक है चिल्ड्रन। और इस 2021 के हिसाब से हमारे रिलेशनशिप बिटवीन एपी एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी एंड टीपी, एपी एमपी एंड टीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप भी हमने डिस्कस किए, और अब रिलेशंस के साथ हम डायग्राम भी डिस्कस करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो आई बिलीव कि इतना आपको एटलीस्ट क्लियर हो गया है, एंड आई होप चिल्ड्रन दैट यू आर डूइंग योर वर्क। सम स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग देयर वर्क एंड दे आर नॉट शोइंग मी देयर वर्क, एंड even if I am messaging them, they are not responding to it. You are not showing me projects also. This is quite annoying. If I am working hard for you people, I am teaching you and I am preparing notes, then what does it mean? That you also need to put in some efforts, right? Sooner or later obviously we are going to meet, right? And I hope at that time it doesn't become difficult for you to
cope with the studies. So if you pay attention right now, then only you would be able to create good results later on. Definitely you people are going to have normal schools after some time. Definitely we are going to meet. In case we don't have junior classes, at least 10th and 12th, we are going to have the normal schools after a few time. So keep watching videos, keep doing your notes. When I message you, kindly respond to the messages. Right? So I'll be moving forward with the next video, and I'll see you in the next video. Till then, take care of yourself and keep studying.